task in the LMS. Can you just open the LMS? You can start the discussion. अभी आप क्या करना है? You have to participate in the discussion. आप start नहीं करना. ठीक है? Those who start, you will redo it again. So don't start. Already we have put a discussion. Introduce yourself. Started by who has started? Technical admin. Okay, click on introduce yourself there. Under the heading discussion, introduce yourself is there. Click on that. Once you open, you will get a box which says like introduce yourself in 100 words. Where are you from? What are you doing? What is your expectation from the program? Like that, there is a paragraph. Reply to that. Dashboard. पहले dashboard. आपका course. Whatever you have to do, first you have to go to your course. कोर्स में पहले बैनर है, बैनर का नीचे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है. So please listen what all you have to write. Please listen. सब 1 मिनट listen कर दीजिए. What all you have to complete? Sir, Bigha team, RI team. Introduce yourself. You have to write introduction about yourself in 100 words. Okay? But after typing, I want you to add your selfie. But selfie should be inside this room. So you अभी कोर्स आ गया ना. लॉगिन कर दीजिए. लॉगिन कर दीजिए. सर आप नया पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए. क्रिएट कर दिया. ऑलरेडी आप लॉग इन है सर. ठीक है. ये एक्चुअली इंटरनेट का वजह है ना, थोड़ा सा चेक कर दीजिए ऊपर. कैमरा इज एट द टॉप ऑफ योर डेस्कटॉप. प्लीज पुट योर हैंड ऑन द टॉप एंड फाइंड आउट. इधर भी प्रेस कर दो ऑन द टॉप. You will get the camera. Press at one point. Center. Okay. Let everyone find their own camera. You don't need to help them out to open the camera for them. Let them find it out. After the session to complete this task. There are many people who have done mistake. Irshad Ahmed. Who is Irshad Ahmed? Yourself. आप दोबारा करना है. गलत कर दिया. Sangeeta madam. You have also done wrong. Mirsha Wazim. Ishfaq Masjid Sheikh. Maybe I am pronouncing it wrong. And Ansari sir. ये सब दोबारा करना है. Actually what you have done is you have all started a new discussion. हम बोला था मैं ऑलरेडी डिस्कशन शुरू कर दिया. मैं हेलो बोलते हैं, मुझे हेलो बोलना है ना. आप दूसरा पर्सन का हेलो बोलते हैं, देन मेरा रेस्पेक्ट क्या होता है? दोबारा भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी डिस्कशन करना है. ये डिलीट करना है. गलत किया वो डिलीट करना है. ठीक है. आप दोबारा अंदर किया, बाहर में डिलीट कर दीजिए. ओके. सो कैन आई रिक्वेस्ट एवरी मॉनिटर टू बी ऑफ प्लीज. Team, please go around and put off. So we are going for the last technical session today. हमें ऑलरेडी बता दिया था ये पूरा सेशन हम क्यों कर रहे हैं. सब जिस मॉनिटर का ऑफ कर दो. कंटिन्यू कर सकते हैं हम बाद में. ठीक है. विल स्टार्ट द सेशन. आरपी हैज ऑलरेडी रीच्ड. सर या तो आप सबको मॉर्निंग इंट्रोडक्शन दिया था. ये पूरा 5 दिन प्रोग्राम हम कर रहे हैं. स्ट्रेंथनिंग डाइट एंड एससीईआरटी का एक पार्ट है. सो हमारा साथ अभी प्रोफेसर शरद सिन्हा जी है. वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, who is also doing a lot of work in bringing out certain standards, coming out with lot of guidelines, working in the area of making diet as an excellence.
So we are very honored to have her here with us for taking this session. Welcome, ma'am, for the session. Your participants are there from 10 states of northern, eastern, western, mostly Hindi speaking, so you can feel free to talk to them in Hindi. Thank you. Namaste. Namaste. Very happy to see. Hope you had a very fulfilling ride in the afternoon. Yes or no? Yes. And the diet is taking over you. नींद आ रही है या नहीं? तो देखिए, बहुत खुशी है आप लोग यहाँ पर आए और बहुत आप में से कई लोगों ने मुझे कई प्रोग्राम्स में देखा भी होगा। डाइट्स ऑफ जो हमारे डिपार्टमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, रीजनल इंस्टीट्यूट्स में हम लोग करते हैं भोपाल में। उसमें सबसे पहला वाला सत्र मेरा ही होता है, पर मैं जा नहीं पाती हूँ और वो क्या होता है कि ऑनलाइन सेशन ही होता है। तो आप सब लोगों से वर्चुअल माध्यम से तो मेरी मुलाकात है और जो लोग सामने बैठते हैं जिनके ऊपर कैमरा फोकस होता है, और शायद आप लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं। भारतवर्ष का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, एक व्यक्ति को आपने नहीं जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। आज तो जान नहीं जाने ठीक है। तो मेरा नाम शरद सिन्हा है, जैसे एंजल ने बताया, और अध्यापक शिक्षा विभाग जो है उसमें मैं लगभग 4 वर्षों से हेड के पद पर कार्यरत हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो डाइट्स ऑफ एक्सेलेंस अब मैं समझती हूँ कि 10 राज्य जो मुझे लिस्ट पकड़ाई गई थी, तो उन राज्यों से आप लोग आए हैं। भारतवर्ष में कितनी डाइट्स हैं? 633 फंक्शनल कितनी है? 613 are the functional diets. There are more than 700 districts in the country. और हर जैसे डाइट का जो सोचा गया था, जिस तरह से डाइट को बनाने के लिए, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल केंद्र होगा जो डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशनल नीड्स को केटर करेगा, है ना। तो लेकिन 613 फंक्शनल डाइट्स हैं हमारे देश में इस समय। और अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस में एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि हमारा जो टीचर एजुकेशन प्री सर्विस, डाइट के पास 2 कार्य हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस। तो प्री सर्विस का कार्य तो जो था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, वो अब कहीं भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि ये डीएलएड नहीं होगा तो हम लोग प्री सर्विस में क्या करेंगे? ये सवाल मैं सारे डाइट के प्रोग्राम में पूछती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे जवाब आते हैं। आईटेप के लिए पॉसिबिलिटीज देखने के लिए कहा गया है। हाँ, और उसके अलावा बीएड रन करने के लिए अगर आईटेप पॉसिबल नहीं होता तो बीएड रन करने के लिए पॉसिबिलिटी के लिए भी कहा गया है कि डाइट अंडर डाइट ऑफ एक्सीलेंस वो चीज की जाए। ठीक है। तो हाँ, नहीं, इसके लिए क्या है कि जैसे अभी नॉर्मली जो कॉलेजेस 2 साल का बीएड भी चला रहे हैं, वो उसे आईटेप करने के लिए भी उनको पसीने आ रहे हैं, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, उतना हमारे डाइट्स अभी कैपेसिटी में, ह्यूमन रिसोर्सेज में स्ट्रेंथन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो इसीलिए भारत सरकार ने डाइट्स ऑफ एक्सेलेंस वाली जो स्कीम लाए हैं कि इन डाइट्स को ऐसे एक्सेलेंस, अभी मेरा सेशन चल रहा था पीएमश्री में, तो पीएमश्री भी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस बनाने की कोशिश है, एज ए लाइट हाउस की वो सबको रास्ता दिखाए। तो कुछ इसी तरीके से डाइट्स के लिए भी सोच की गई है। और जो आप लोगों की समस्याएं हैं ये हर प्रोग्राम में हमें पता चलती हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से हमें पता है। तो हमारे यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाटीदार हैं जो उस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, उनसे आप लोग परिचित होंगे। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, और बैकग्राउंड ये 1990 में जब डाइट्स की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1986 की पॉलिसी के फलस्वरूप, और उसके बाद में उसका कोर मिशन जो था कंटिन्यूअस प्रोफेशनल टीचर डेवलपमेंट, यानी देखिए एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जो की रिसोर्स पर्सन बोले तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट से या हर संस्थान से 2 अच्छे लोगों को जो कि आगे ट्रेनिंग दे सके। लेकिन इतने साल हो गए हमें एनसीईआरटी में काम करते हुए, और हम देखते हैं कि स्टेट में जाकर क्या होता है, जैसे कोको कोला की बोतल खोलते हैं ना, बुलबुला आता है,
ठीक है, जब तक स्टेट तक जाता है तब तक वो सिर्फ मीठा पानी रह जाता है। ठीक है, जो जोश यहाँ रहता है 5 दिन की या 3 दिन की ट्रेनिंग में, वो जोश वहां नहीं दिखाई देता। कुछ जोशीले कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो जोशीले कोशिश करते हैं तो उसके बाद में कई बार उनको प्रॉब्लम होती है। यू डू नॉट हैव द मटेरियल, यू डू नॉट हैव द मॉड्यूल, और यू डू नॉट हैव द टाइम। या सुनने वाले ही नहीं होते। अरे क्या बता रहे हो, हम सब जानते हैं, है ना। अब या मतलब उस शिद्दत के साथ नहीं बता पाते, वो चीज उतनी आगे तक नहीं जा पाती है ना। तो उससे क्या होता है कि जो एफर्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है पूरे जोशो खरोश से, हम अपना काम छोड़ के आए। एक पीएमसी का सेशन था जिसे हमने एडजस्ट किया, और जल्दी से उनको बाय बाय और जय जगन्नाथ कह के वापस भागकर दौड़े दौड़े हम उस बिल्डिंग से यहाँ पर आए। तो वो जो कमिटमेंट के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, वो कमिटमेंट नीचे जाने वाले टीचर तक उतना नहीं पहुंच पाता है। ये एक समस्या है। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपनी वो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन डाइट से ये। और दूसरा, आपका कोई कार्डर नहीं है। कभी आप स्कूल में चले जाते हो, कभी कहीं के प्रिंसिपल बन जाते हो, कहीं ट्रांसफर हो जाता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो आप अपने साथ जो चीजें लेके जाते हो, तो आप ये सोचते हो अरे यार ये तो डाइट के लिए था, स्कूल में छोड़ो ना। अब मतलब कितनों में जोश रहता है। इतने हम लोगों ने बहुत सारी पिछले 25 साल से मैं एनसीईआरटी में हूँ, मैंने बहुत सारी स्टडीज करी। उसमें एक स्टडीज में मैंने ये देखा कि वेल्लुपुरम में, तमिलनाडु से कोई है, वेल्लुपुरम में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कोई भी टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए जाता है तो वो शनिवार सेकंड सैटरडे को सबके साथ में साझा करता है। वहां पर हम लोग पहले जो स्पाइरल बाइंड मॉड्यूल देते थे, तो उन मॉड्यूल को भी क्या करता है, स्कूल में फोटोकॉपी करके उनकी 4-5 कॉपी रखी जाती है, और जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेता है। देन व्हाट हैपेंस इज, वो टीचर्स को बताता है मैंने क्या सीखा, और इसमें मुझे अच्छा लगा और इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। तो टीचर्स भी अपने सवाल पूछते हैं। वो कोई ट्रेनिंग नहीं कराता अपने स्कूल के टीचर्स की, लेकिन फिर टीचर्स भी उसको मतलब क्या। और फिर एक और बहुत अच्छी चीज, जैसे स्कूल से टीचर्स को या आप लोग आते हो तो आपका काम तो सफर करता है ना 5 दिन के लिए। तो जो बहुत कमेरे लोग होते हैं, देखिए मुझे माफ करना, आप सब बहुत मेहनती हैं। जो कमेरे होते हैं ना, तो ऑफिसर का क्या सोचता है, अरे यार इसको जाने से मेरा काम बिगड़ेगा, तो नहीं 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 नहीं, तुम जा। ठीक है, तो तुम में वो होता है जो ज्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, मे भी उसकी ग्राह्यता ज्यादा नहीं है, और वो ज्यादा जाकर फिर वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। लेकिन वेलुपुरम में मैंने ये देखा कि वो लोग जब एकेडमिक उनका स्ट्रेंथनिंग होती है, और वो जब पढ़ाता है सब लोगों को बताता है कि मैं ये सीख कर आया और मैं ये करूंगा अब आके, और मुझे ये लगा। तो उसका जो क्लासरूम है, जैसे मैथ्स और साइंस के टीचर को कभी डिप्यूट नहीं किया जाता, तो उसके लिए उन्होंने पता है क्या किया कि मैथ्स का टीचर जो जा रहा है, मान लो स्कूल में, ये स्कूल का वाकया बता रही हूँ मैं। तो मैथ्स का टीचर जा रहा है तो वो क्या करता है, साइंस वाला कहता है कि मैं तुम्हारे पीरियड्स साथ में ले लूंगा और मैं अपने हिस्से का एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ा दूंगा इन 5 दिनों में। लेकिन जब तुम आओगे तो तुम्हें मेरे हिस्से का पढ़ाना पड़ेगा, मैं कुछ और काम करूंगा। ठीक है, इट हैपेंस दैट वे। और यदि वो इस तरीके से होता है तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि बच्चों का नुकसान नहीं होता, और इस तरीके से उस स्कूल में पढ़ाई सुचारू रूप से होती रहती है। ऐसा मैकेनिज्म मैंने किसी डाइट में नहीं देखा। बहुत सारे स्कूलों को विजिट करते हैं हम लोग, जा जाके देखते हैं कि हम लोग इतना यहाँ पर प्रवचन प्रवचन ही है, यदि उसको जमीनी तौर पे कुछ नहीं हो पाता तो वो प्रवचन ही हो जाता है ना। तो वो हमारे प्रवचन का क्या असर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हम देखते हैं। तो दिस इज समथिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बात करती है, वो सोचती है कि डाइट एक ऐसे इंस्टीट्यूट के रूप में वाइब्रेंट, कलरफुल, बजिंग विद एक्टिविटी, पीपल कमिंग, लर्निंग, डिस्कसिंग। एक बार मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गई थी, हरियाणा में मैं काम करती थी उस समय, और वहां पर से एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में उनकी जो 50 इयर्स हुए थे तो एक क्विज थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड का केमिस्ट्री क्विज में सिलेक्शन हुआ था। तो जब हम वहाँ गए थे तो हमको वहाँ का एटॉमिक रिएक्टर भी देखने का मौका मिला, और वो पूरे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उन्होंने हमको घुमाया। जब हम वहां पर घूमने गए तो हमने देखा कि एक बिल्डिंग है जिसमें गलियारा लगभग 1 किलोमीटर लंबा था।
ठीक है, हमने बोला ये कैसी बिल्डिंग है यार, इतना लंबा, कमरे 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 कमरे, इसको यू शेप वी शेप, मतलब तो अब तो जैसे शहरों में रहते हैं तो जगह संकुचित सी रहती है, वहां पर देखा तो यू नो व्हाट दे सेड, दे टोल्ड मैडम इस गलियारे का एक सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमारे आप मुझे गलियारे में कम ही लोग दिख रहे थे, इक्के दुक्के लोग, तो दिस इज कॉल्ड द थिंकिंग कॉरिडोर। जब किसी साइंटिस्ट, और वहां पे साइंटिस्ट के कैबिन है, तो जब सम साइंटिस्ट हैव सम प्रॉब्लम विच ही और शी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन, तो वो क्या करता है, बाहर निकल आता है अपनी खोपड़ी खुजाते हुए, बाहर निकल के आता है, और कोई बाहर उसे उस रास्ते में मिल जाता है, उससे डिस्कस करते करते वो पूरे गलियारे में आखिरी तक जाता है, और आखिरी से जाके अपने कमरे में तब घुसता है जब उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। सपोज आई आस्क यू एंड यू से नहीं मेरे पास नहीं है, मे बी वो सर इस बारे में बात कर रहे थे, तो उनका दरवाजा खटखटाते हैं और उनको बुलाते हैं और उसी गलियारे में डिस्कशन करते हैं और जाते हैं। हमारी डाइट्स में, हमारे एससीईआरटी में ऐसा क्यों नहीं होता? ये कहलाते हैं वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब ये नहीं होता कि चमकीले इंस्टीट्यूट्स हो, चमकदार हो, बढ़िया पेंटिंग हुई हो, बढ़िया पोस्टर लगे हो, दैट इज नॉट वाइब्रेंट। वाइब्रेंट इज द पर्सन, वाइब्रेंट इज व्हाट यू डू, वाइब्रेंट इज व्हाट यू रिफ्लेक्ट। ओके, तो डाइट्स को ऐसे इंस्टीट्यूशंस के रूप में इमेजिन किया गया। भैया इधर देखो जरा, ये क्यों डुल हो रहा है? अच्छा, ठीक है। और फिर उनका एक्सपैंडेड रोल, अभी मैंने ये एलिमेंट्री नहीं लिखना चाहना चाहिए, मेरे से गड़बड़ हो गई, ये एलिमेंट्री शब्द तो हमने हटा दिया है। अभी तक डाइट को एलिमेंट्री यानी 8वीं कक्षा तक के लिए रखा गया था, लेकिन अब डाइट के रोल को बढ़ा दिया गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है और वो सेकेंडरी लेवल तक हो गया है। साथ में प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग प्लस डेवलपिंग मटेरियल फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो an important part of the diets। आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं सोच सोच के मुस्कुरा रहा हूँ, इतना काम होगा कैसे? मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। चैलेंज को सोच रहा हूँ कि ये करना होगा। नहीं, ये अच्छी बात है कि चैलेंज को देखकर मुस्कुरा रहे हैं आप, वेरी गुड। और क्वालिटी सिस्टम, यानी अभी देखिए डाइट्स के फ्रेमवर्क्स भी बने हैं, मतलब अभी हम लोगों ने बनाया स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क फॉर प्रीएमसी स्कूल, स्क्वाफ, सीबीएसई स्कूल के लिए स्क्वाफ। अभी डाइट्स के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी शायद आप लोग के साथ में शेयर किए होंगे, जिसमें भी हम लोग की सहभागिता थी, मेरी प्रोफेसर रंजना जी की, तो उसमें हम लोगों ने, और मंत्रालय की तरफ से ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, उसमें आप लोगों के लिए एक्शन रिसर्च करने के लिए, अभी मैं आपको बताऊं बड़े मजे की बात, मैं बात कर रही थी एक्शन रिसर्च की किसी ग्रुप के साथ, तो उन्होंने पता है क्या कहा, एक्शन रिसर्च तो हम डाइट वालों को दे देते, वो हमको करके देते। मैंने बोला खुजली तुम्हारे पैर में हो रही है, तकलीफ तुम्हारी क्लास में हो रही है, डाइट वाला रिसर्च करके क्यों देगा? मतलब आई अंडरस्टूड समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी डिफरेंट, कि एक्शन रिसर्च तो मेरी प्रॉब्लम की है ना। सिद्धार्थ, मैं एक सेशन में हूँ, इस सेशन के बाद में बात करती हूँ। तो इट इज लाइक दैट, मतलब डाइट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया तुम करा दो एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च में मैंने अभी एक थोड़े दिन पहले यही पीएम विद्या पे एक सेशन लिया था, तो उसमें मुझे ये पता चला कि मतलब इवन केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के टीचर्स के लिए था, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया कि मैडम हमें प्रॉपरली करके बताइए, जबकि केंद्रीय विद्यालय के टीचर तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, कि हमें प्रॉपरली करके बताइए, लैंग्वेज में हम कैसे करें, एक एग्जाम्पल आप इंक्लूजन का लेके बताइए। तो वेरी वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू गो देयर। ओके, तो एक्शन रिसर्च के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं, जो कि आप लोगों का काम है। और मुझे ये सुन के खुशी भी हुई, हंसी भी आई, वो भी लगा कि स्कूल वाले कहते हैं हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डाइट को एक्शन रिसर्च करके को दे देते। सो आई हैड अ हार्टी लाफ ऑन दैट। ये उनका अब जो चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने, देखिए समस्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस की समस्या है, संसाधनों की समस्या है, ठीक है, रेगुलर कार्डर नहीं है इसकी समस्या है, और फिर क्या होता है डाइट को कई बार पनिशमेंट पोस्टिंग लिया जाता है, ये समस्या है। कुछ डाइट में क्या होता है कि बहुत थके हारे लोग भी आते हैं डाइट में, वो भी एक समस्या है।
ठीक है। नहीं, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है कि वहां पर काम की बाहुल्य नहीं है, अधिकता नहीं है। सो नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू एनीवन, पर ऐसा होता है। और जो जो राज्य अभी अभी आने से 10 मिनट पहले मुझे पता चला कि किस किस राज्य के आए हैं, तो उसके अनुसार ही मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन को फ्रेम करने की कोशिश किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 52 जिले हैं, 70। ठीक है, कितने जिले हैं? 75। तो डाइट्स कितनी है? 70। तो 70 डाइट है, मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में डाइट्स का, उत्तर प्रदेश में। अब आपके चैलेंजेस आप बताना कि मैंने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ठीक है, ये हमारे ये सारा हमें मिला कहाँ से? जो हमारे डाइट के हम प्रोग्राम करते हैं उससे हमें ये फीडबैक मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जिसमें 35% स्कूल्स आर इन पुअर कंडीशन। स्कूल्स का मतलब ये है कि डाइट्स, यहाँ पर डाइट्स है। ठीक है, और फैकल्टी वैकेंसीज एक इशू है, ये है या नहीं? यस और नो तो बोलो, सिर मत हिला। है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, ठेकेदार अलग तो बिल्डिंग अलग। ठीक है, ठेकेदार अलग, बिल्डिंग की क्वालिटी अलग। हाँ? बिल्डिंग सेम नहीं है मैडम। नहीं, मतलब अगर सेंट्रलाइज करके अगर बनाया गया तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग सारी सेम है, लेकिन हाँ। आपने जो बोला ना ठेकेदार अलग तो क्वालिटी अलग है। यानी कोई है ना स्टैंडर्ड, जैसे एक है ना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे बिल्डिंग ऐसी होती है, इतने कमरे होने चाहिए, कमरे होंगे, कमरे का साइज इतना होना चाहिए, वो होगा। लेकिन फिर भी जैसे बाहर से आप जाते हो पीएमसी स्कूल, एक मतलब केंद्रीय विद्यालय के बाहर आप जाते हो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी कुछ होती है, ऐसा इसमें नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। तो अब उसके बाद में बिहार में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बहुत जबरदस्त है। हाँ बोलिए, बिहार, जय बिहार। जय बिहार मैम नहीं है, खत्म हो गया, सारा कहानी बिल्डिंग मैम। नया बड़ा बना है अच्छा मैम। नया बन गया है। डाइट की बिल्डिंग और सारी सारे सेम है मैम। जो आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, केवी वगैरह सिमिलर, तो सारे डाइट सेम डाइट्स है, भी सेम बिल्डिंग बनी है मैम। चलिए, सेम मैं इसे डायमेंशन correct कर के। हाँ देती मैम हूँ। हाँ प्लीज। मैम। बिल्कुल करेक्ट हाँ, कर हाँ। देती हूँ। बिल्डिंग चाहिए तो स्कूल की और बिल्डिंग मैम दे देता है। फैकल्टी भी रिक्रूटमेंट जो हमारे यहाँ प्रॉपर कैडर है, जिसमें 800 समथिंग हाँ, वो भी फैकल्टीज है। रिपीट हो गया ठीक है, है। और मैम, प्लीज रीसेंट इसको ले। इम्प्रूवमेंट इन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हुए हैं, ये आपके यहाँ पॉजिटिव है। और फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड वो भी हो रिटेंशन के जो चुके हैं। चैलेंजेस हैं वो वो भी भी। है। हाँ, और लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, वो भी है। वो तो पता नहीं अच्छा, कैसे एक ये चीज बना बताइए, है। ये है, लेकिन आप 2 डाइट्स की वेबसाइट गूगल करिए, हाँ ये ठीक है उसको लिंक पे क्लिक करिए, वो खुलती नहीं है। नहीं मैम, खुद इसमें नहीं। एडमिशन चल रहा, सारी खुल रही मैम है। एडमिशन में सारे अभी तो सारे डाइट्स के वेबसाइट खुल रहे हैं। एडमिशन में खुल जाएंगे। नहीं मैम वैसे नहीं खुल रहा, अभी तो हम लोग काम चल रहा है ना। नहीं मैम अभी काम चल रहा है। हाँ नहीं है, ये मैं चेक करके लिखी हूँ, मैं लिखी अब हूँ। प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है मैम। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Yes, yes, देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया गया है। देखिए, किसी भी स्टेट के लिए कोई भी ऑफेंस मत लीजिएगा, जो मिल रहा है, जो डाटा इंटरनेट से जो हमें डाइट्स के प्रोग्राम्स के दौरान आपके साथियों ने लिख के दिया, ये उसी के आधार पे हमने बनाया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो है, बजट एलोकेशन बड़ा है, लेकिन रिसोर्स एक चीज जो देखी गई है, रिसोर्स एलोकेशन के बाद भी उसका प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट देर से आती है, फिर वो तब तक यूटिलाइज करते हैं तो आनन फानन कुछ बेंच खरीद ली जाती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यस खरीद मैम, लिया, टाइम पे वो कुछ- नहीं मैम। वो इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं। और झारखंड में क्या है? झारखंड कौन भाई? जय जोहार। तो मिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है, कहीं जोहार छत्तीसगढ़ भी है, उसके लिए बोलेंगे छत्तीसगढ़िया सबसे सबले बढ़िया है। बढ़िया। ठीक है, तो मिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है, कहीं अच्छा तो कहीं अच्छा नहीं। और 35% ऑफ द स्कूल्स दे लैक बेसिक फैसिलिटीज, जो टॉयलेट्स और वाटर फैसिलिटीज है, रनिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज है। टीचर प्यूपिल रेशियो चैलेंजेस है कि नहीं है? और बेटर देन बिहार, बट बिहाइंड मोर डेवलप्ड स्टेट्स। ठीक है, कई पैरामीटर्स में बिहार से बेटर है। ज्योग्राफिक चैलेंजेस हैं,
ट्राइबल और रिमोट एरियाज में जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, रिसोर्सेस की भी, टीचिंग की। ठीक है। और उड़ीसा क्या है, उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव आया है, मॉडरेट है, बेसिक फैसिलिटीज के इम्प्रूवमेंट पे पहले टीयर में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जो कोरापुट नौपड़ा ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हाँ इसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें मैं एग्जांपल बता रही हूँ भाई। और फिर बेटर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनमें बेटर है। इंटीरियर ट्राइबल एरियाज जो है उसमें गुड, मतलब मैंने ठीक लिखा। अब सबसे बढ़िया, हाँ, तो मिड लेवल डेवलपमेंट है, ट्राइबल एरिया यहाँ पर भी है, भाषाओं की विविधता है, ट्राइबल एरिया में लोकेशन के चैलेंज है, लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के चैलेंजेस है, कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर समग्र शिक्षा के तहत बहुत करी गई, हमने भी बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग करी, और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट अब हो रहे हैं और थोड़ा एक्सेलरेट हुए। राजस्थान, और कोई अच्छी बात है झारखंड की तो बताओ भाई, ओ सॉरी छत्तीसगढ़ की बताइए तो। नहीं, कुछ अच्छी बात जो ये सब सुन के इनकी बाँछें खिल जाए या इनको ईर्ष्या होने लग जाए कि छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा कैसे। छत्तीसगढ़ में 4 डाइट्स को नेशनल लेवल पे कुछ अमाउंट दिया गया है, प्रदान किया गया है ताकि वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर आपने कुछ अच्छा क्या किया जिसे सुन के ये जल भून जाए बिल्कुल। भाई सोचिए अपने अपने राज्य में क्या अच्छा किया जो दूसरे को जला दे। कंपटीशन तो तभी होता है ना अच्छा बनने के। झारखंड में डाइट में सीपीटी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। हाँ तो मैंने उसमें लिखा ना कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स। डाइट्स में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हाँ रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसे डॉक्यूमेंट और शेयर भी करिए और हमारे डिपार्टमेंट में 3 जर्नल निकलते हैं उसमें भेजिए। ठीक है, तो भाई आप सोच के रखो, आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल द रिमेनिंग वंस। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं। राजस्थान, हाँ राजस्थान, हाँ पधारो हमारे देश। ठीक है, बताइए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बड़ा राज्य है, तो जो ढाणी और वो बहुत दूर 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 तक है वहां पर मतलब थोड़ा सा कनेक्टिविटी, और उसके बाद में डेजर्ट और रिमोट एरिया के चैलेंजेस है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में राजस्थान की SCRT में भी बहुत प्रोग्राम होते हैं। हम लोगों ने एक कंसल्टेटिव मीट करी थी अभी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस की, उसमें भी पूरी सहभागिता थी। हमारे सभी कार्यक्रमों में राजस्थान चूंकि एक तो निकट है, आराम से आ जाते हैं, तो राजस्थान की सहभागिता हमेशा रहती है। तो राजस्थान में क्या अच्छा है बताओ भाई डाइट्स में। राजस्थान से पूछिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। हाँ इसके अलावा MLA प्रोग्राम मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में भी चल रहा है। अच्छा, एज ए टीम डिस्ट्रिक्ट अभी लिए हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर वो सक्सेस हो जाए तो ओवरऑल राजस्थान में इसको, मैं आपको बताती हूँ आपके राज्य की विशेषता। अभी मैं थोड़े दिन पहले कुंभलगढ़ में एक चिंतन शिविर हुआ था, उसमें तो मुझे इतनी खुशी हुई कि राजस्थान की विभिन्न जो लोकल लैंग्वेजेस है ना उसमें बड़े सारे प्राइमर बनाए गए। ठीक है, राजस्थान में आपके यहाँ पर जालोर में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर हिस्ट्री को बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड में पूरी नेशनल हिस्ट्री को 1947 से लेकर अब तक की नेशनल हिस्ट्री को दीवारों पे डिपिक्ट किया है और बच्चे उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ संदीप जोशी है वहाँ पर उन्होंने करा है, उन्होंने मुझे भेजा था, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। तो ये थिंग, और उसको देखकर बहुत सारे लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, बहुत सारे डाइट में इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, द पिक्चर ऑल्सो आई हैव। तो उन्होंने मतलब जैसे आप मान लीजिए राणा सांगा के बारे में NCERT की किताबों में सारे स्वतंत्रता सेनानी को हम नहीं डाल सकते, यदि डालने लगे तो किताब नहीं एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि बस्ते का बोझ बढ़ गया, है ना। तो इसलिए आप चाहते हो, आपका बच्चा चाहता है तो आप तो कम पढ़े और ज्यादा नंबर आ जाए, लेकिन जब हमें चिट्ठियां लिखते हो तो लिखते हैं इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, पार्लियामेंट तक चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 30% करिकुलम जो बनता है, प्रोफेसर रंजना जी ने भी आपको बताया होगा कि 30% कंटेक्चुअलाइज करने का होता है, यानी लोकल हिस्ट्री, लोकल के बारे में बताना। ठीक है,
तो उनके बारे में आप उसमें समाहित कर सकते हो। तो ये लोकल हिस्टोरिक, अब उसी से प्रेरित होकर अभी SCRT के स्ट्रेंथनिंग का एक मैंने प्रोग्राम बनाया, जो एक कमेटी थी जिसकी मैं चेयरपर्सन थी। तो उसमें मैंने लिखा कि लोकल कॉरिडोर्स, लोकल आर्ट गैलरीज बनाई जाए, जिसमें बहुत सारी बातें, जैसे उड़ीसा का पटचित्र हो गया, ठीक है, आपकी जगन्नाथ यात्रा विश्व में मौजूद है, रसोगुल्ला को, बंगाल का कोई आया तो रसोगुल्ला को GI टैग मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, वो जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, हर राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। राजस्थान में ट्रैवल, टूरिज्म, हिस्ट्री, ब्रेवरी, वो सारी चीजें। तो वो क्या होता है कि एक है ना, या तो आप वीडियो बना लें उसके, और जब एक्सकर्शन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, दिखाते हैं, उसको रिसोर्स के रूप में यूज करें, या अपनी गैलरी को आप एक कल्चरल गैलरी के रूप में डेवलप करें। तो एक रिपोजिटरी के लिए भी हम लोगों ने पैसा का प्रावधान किया है। लोकल क्विजीन, लोकल ड्रेस, मैं नागालैंड में गई थी, नागालैंड का कोई नहीं है यहाँ पर, नागालैंड के म्यूजियम में उन्होंने सारे विभिन्न तरह के परिधान अपने दिखा रखे हैं, अलग अलग तरह के परिवार। और नागालैंड की जैसे वॉरियर्स ही होते हैं, हंटर्स होते हैं, तो क्या होता है कि उनके ना रेड और ब्लैक तरह के देखे होंगे ना अपने शॉल, तो हर शॉल में जो बीच में पट्टी होती है ना, उसमें अलग तरह के साइन होते हैं, वो हर कबीले की निशानी होती है। दे टोल्ड मी वंस व्हेन आई वेंट एज अ स्टेट गेस्ट, तो उन्होंने बोला ये महिलाओं को नहीं पहनाया जाता है जिस महिला ने कम से कम 14 हत्या कर दी हो, मतलब हत्या ना जानवर की, क्योंकि वो मारते हैं जानवरों को, दे आर बेसिकली मीट ईटर्स, तो उन लोगों को पहनाया जाता है बिकॉज शी इज अ वॉरियर। तो आप तो हमारी गेस्ट हो इसलिए पहना रहे, मैंने तो ऐसे किसी को मारा नहीं कभी, वेजिटेरियन हूँ, पर वो अभी मैंने रखा हुआ है। बट आई अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस कि हर कोई उसे ओढ़ नहीं सकता था, आजकल तो वो फैशन में जैकेट भी बना के लोग ओढ़ते हैं, ठीक है, बट इट हैज अ सिग्निफिकेंस। तो कल्चरल हिस्ट्री, और मतलब वो शिकार करने के सिर्फ भाले बच्चे नहीं थे, इवन मैंने एक देखा उनके शिकार करने के तरीके में, लकड़ी होती है ना, लकड़ी को बीच में से काट दिया, उसमें नुकीला पत्थर लगाया, एंड देन उसको घुमा घुमा के ऐसे करके ऐसे मारते हैं कि वो दौड़ते हुए जानवर को लगता है और वो मर जाता है या वो गिर जाता है। मतलब इतना निशाना, इतना प्रिसिशन, वो स्किल है, accuracy, that is a skill. So that is something that has to be preserved, that is to be understood. Okay, तो ये इस तरह के म्यूजियम या रिपोजिटरी हम बना सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से कोई आया है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में आप बताइए, आप ये सारी बातें जो मैंने लिखी ये सही है? ठीक है मैम, एक्चुअली थोड़ा अनफॉर्चुनिटी सी हो रही है इस टाइम डाइट्स में, थोड़ा सा पीछे से गवर्नमेंट इस पे, एक तो वही बात आपको कि पनिशमेंट वाला ज्यादा वो है, दूसरा 70% की कंडीशन लगा दी थी पीछे से, फिर थोड़ा फील्ड में भी मुश्किल हो रहा है, BRCs नहीं है, और टोटल प्राइवेटाइज ही हो गया है सारा, वो क्या चीज प्राइवेटाइज हो गया? मतलब हर चीज जो है वो NGOs ने ओवरटेक कर लिया काफी हद तक। ये देखिए, जैसे इसमें NGO जो ओवरटेक कर रहे हैं ना, ये सब मैं समझती हूँ, देखिए इट्स अ टॉल थिंग, जैसे वो सर मुस्कुरा रहे थे कि इतने चैलेंजेस कैसे प्रूव। देखिए ये पोस्ट ऑफिस कब जाते हो, कब से नहीं गए पोस्ट ऑफिस? अरसा हो गया पोस्ट ऑफिस गए हुए, अरसा हो गया वो लाल रंग के डब्बे में चिट्ठी डाले हुए, ठीक है, क्यों? बच्चे में तो हम लोग वो पेपर में लिख के डालते उससे बेटर ऑप्शन नहीं, लाल रंग का डब्बा बंद हो गया। हाँ, लाल डब्बा तो अभी तो यहाँ लगा हुआ है NCERT में, तो खाता नहीं है नहीं, हम लोग करते हैं ना, हम लोग की जाती है ना डाक, सरकारी डाक तो जाती है, सरकारी लेकिन डाक ऐसे तो, पहले पब्लिकली भी रहता था मैम, अब वो हाँ नहीं है। हाँ, नहीं, तो उसका रीजन क्या है कि दे फेल टू प्रोवाइड सर्विस इन टाइम। कोई मर जाता था, उसकी तेरही भी हो जाती थी और सब कुछ हो जाता था, तब तार पहुंचता था, ऑल्दो वो टक टक मोर्स कोड से जाता था, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया कि हम अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाए जिस चीज के लिए हम बने थे, तो क्या हुआ, एक पैरेलल मार्केट खड़ा हो गया कोरियर का। अब सब कोरियर से भेजना पसंद करते हैं, है ना, तो जब हमको वही सुविधा, थोड़े पैसे भी ज्यादा भी लगते हैं, लेकिन पर हमें प्रिसिशन, एक्यूरेसी, टाइम, ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं, तो फिर क्या होगा, पोस्ट ऑफिसर हैव डाइड सडन, अब दे आर स्लो डेथ,
अपने आप अपनी अकर्मण्यता के कारण बने हैं, ठीक है ना। अब स्कूल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पूरे क्वालिफाइड एक प्रक्रिया के तौर पर आते हैं। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स सेमी क्वालिफाइड, लेस क्वालिफाइड, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से दुगना काम करते हैं, 10 गुने लेसन बनाते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी नहीं है ना वहाँ। हाँ। तो ये डर लगता है कि कभी भी निकाल सकते तो हैं। हम क्या हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, हमारी नौकरी कोई छीन नहीं छीन नहीं सकता, बच्चे जाए कुएं में, ठीक है ना। तो वी स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड, है ना। ये हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है यार, ठीक करो यार। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो डाइट्स में भी क्या होता है, डाइट्स SCRT जो बहुत एक नोबल चीज के लिए सोच से बनाए गए थे, यदि वो रिजुविनेट हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए, तो हो सकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाए, चेंज आ जाए। हम लोग हमेशा मिनिस्ट्री पे बात करते हैं कि डाइट का सेपरेट कार्डर दिया जाए, सेपरेट कार्डर दिया जाए, उनको एट पार रखा जाए SCRT के साथ, उनके वेजेस बढ़ाए जाए, उनकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की सुविधाएं बढ़ाई जाए, उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाए, और उनके साथ में मतलब वो मोटिवेशन भी तो दिया जाए करने के लिए, भाई मैं क्यों करूँगी, ठीक है, मैं क्यों कोई काम करूँगी अनलेस एंड अंटिल आई हैव द मोटिवेशन। ओके, अब किसी के लिए मोटिवेशन पैसा होता है, किसी के लिए मोटिवेशन पोस्टिंग होता है, किसी के लिए अवार्ड होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हिमाचल ये डाइट की इस बार जो रहा लास्ट टाइम नेक्स्ट में 21st पोजीशन से 5th पोजीशन में आए हम लोग। तो उसमें उनका जो हमने टेस्ट की तैयारी करवाना, यू डाइस को अच्छी तरह से फिल करना, इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स की, और हमने जैसे कई बार यू तो डाइस आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, शिक्षक पर्व में मैंने डाइट, हिमाचल प्रदेश के एक डाइट के टीचर, राजेंद्र नाम था उनका, क्या नाम है, उन्होंने मैथमेटिक्स बच्चों को बहुत नए तरीके से पढ़ाई थी, 2 या 3 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी है। राजेंद्र, हाँ कहाँ, मैं भूल रही हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। तो उन्होंने मैथमेटिक्स, वो भी किसी डाइट के ही लेक्चरर थे, तो लेकिन उन्होंने किया, वो काम उनके साथ में खत्म हो गया। अब हिमाचल में तो भैया बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। आपका वो KBC में वो अभ्युदय, वो आया था अभ्युदय सिंह, वो आपके अमिताभ बच्चन की से इतने प्रश्न पूछ रहा था, बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। तो इज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो बच्चे तो हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। और ये है थोड़ा सा, ये सारे रीजनल इम्प्लीमेंटेशन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद का डाटा है जो मैंने इकट्ठा करना है। उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, ये डाइट इम्प्लीमेंटेशन में सबसे आगे है, ठीक है। तो जो सबसे आगे, वो अपने लिए ताली बजा लो। अब आप सोच रहे हो कि किस चीज में मैडम ने आगे कर दिया, सबके चेहरे पे बड़े विस्मय बोधक चिन्ह है? मैडम हम लोगों ने उत्तराखंड में, अब आप ये बोलो, हाँ मैडम हम जी जान लगा के काम करते हैं, कम से कम आपने तो हमें शाबाशी दी है। अभी आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो कि हम अच्छे कहाँ से हो गए हैं? नहीं, कुछ काम सब जगह अच्छे हैं जो हमने, हाँ, हाँ? उड़ीसा में तो बहुत काम किया, हर हफ्ते हमको उड़ीसा में एक सेशन लेना पड़ता है। बिहार में गुड प्रोग्रेस इन NEP 2020, जादुई पिटारा का अडॉप्टेशन बहुत अच्छे से हुआ है, और फाउंडेशनल निपुण भारत गाइडलाइंस का इनका क्या, जादुई पिटारा अडॉप्टेशन, जादुई पिटारा का जो हमने जादुई पिटारा दिया वो तो है, लेकिन अभी मैं आपको एक उसमें दिखाती हूँ। मैं लेह गई थी, तो लेह में वहां पर एक मंक है, उन्होंने पूरी वहां की भाषा में पूरे जादुई पिटारा की जो चीजें हैं, उर्वुक पुस्तिका, और दीवारों पे उन्होंने वो सारा कुछ, वैसे नब्रू नाम है उनका, और उन्होंने करा, मतलब स्टेट लेवल एडाप्टेशन, क्योंकि अपनी भाषा में चेंज करना। क्योंकि बच्चे तो हमारे, अब जैसे हम कोई चीज बताएंगे तो दिल्ली की भाषा बहुत इलीट है, और वहाँ की भाषा जो है लोकल भाषा में जब बच्चा समझेगा वो बेहतर समझ होती है, तो वो अडेप्टेशन नहीं है। मतलब कई राज्यों ने उस जादुई पिटारा में कुछ और भी खिलौने डाल लिए हैं, तो ऐसा अडेप्टेशन वहाँ त्रिपुरा में हुआ है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। हमने उत्तराखंड ने अपना अलग जादुई पिटारा बना दिया। हाँ, उत्तराखंड आपने भी बना दिया। उत्तराखंड तो बहुत आगे है, जादुई पेड़ी नाम के बना है। यस, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं। और जम्मू कश्मीर में आप बताइए, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी,
भाई मुस्कुरा क्यों रहे हो फिर बताओ मुझे मुस्कुराने की वजह। अब वो मत गाना मुस्कुराने की वजह तुम हो। बताइए तो क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैं भी मुस्कुरा लूं। हाँ? देखिए मैंने नागालैंड में एक सेशन लिया सोशल ऑडिट का, ये अभी 2 महीने पहले की बात है। जब हमने सेशन लिया तो हमने बोला कि आपके यहाँ तो पीपल टीचर रेशियो बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट रीजन से, लेकिन जब मैं सेशन लेने से, हालांकि ऑनलाइन सेशन था, तो मैं रीड तो करके ही जाती हूँ उसके बारे में बहुत एग्जॉस्टिवली। मैंने बोला पर आपके यहाँ प्रॉक्सी टीचर की समस्या बहुत ज्यादा है, जब पीपल टीचर रेशियो सही है तो प्रॉक्सी टीचर की क्या जरूरत। दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, so they said we all stay in cities, proxy teachers सारा मामला संभालते हैं। they admitted हाँ नागालैंड, ठीक है, they admitted and it is on record। तो नागालैंड मैंने पढ़ के गई, पूरा उनका रिकॉर्ड पढ़ा, क्या है कैसे पीएवी में उनको कैसा पैसा मिला, उस पैसे का वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो शायद इनकम टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है ना। वो वाली चीज मुझे बड़ी अपील करती है तो लेकिन अब आप बताइए अपनी मुस्कुराहट की वजह, छोड़ा नहीं है अभी। बताइए। JNK मैम इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन FLN बट दूसरे एरियाज में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी बहुत सारे विजन डॉक्यूमेंट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स को हमने कंटेक्चुअलाइज करके ना लोकल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट करा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स की बात आप कर रहे थे, तो वैसा डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया और जादुई पिटारा को भी कंटेक्चुअलाइज करके हमने वहाँ पर प्रिपेयर किया। ओके सो हमारा जो चैलेंजेस यही है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है सारी डाइट्स और सारी SCRTs फेस करती हैं, दैट वी डोंट हैव अ सेपरेट टीचर एजुकेशन कैडर, जिसकी वजह से लड़ते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, चिल्लाते क्यों नहीं हो। सब कुछ करते हैं, वी डू एवरीथिंग। बहुत पहले से कह रहे मैडम, हाँ और कोई बात दुखती रगा बताना ये मैम और जो मोस्ट ऑफ द स्टाफ है वो डेप्यूटेड होता है। अब हमारे जैसे ऑलमोस्ट देयर आर 1072 पोस्ट और 1072 पोस्ट में से लेस देन 50% आर फिल्ड राइट, एंड इवन देन हमारे जो डाइट्स और हमारे जो SCRT है, दे आर मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज वेल एज दे कैन। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और कोशिश कर रहे हैं हम कि मतलब वी लर्न एंड बेसिकली गेन नॉलेज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। जैसे बाकी डाइट्स आई हैं, बाकी SCRTs आई हैं, वहाँ पर जो चीजें हो रही हैं JNK के बारे में मैं एक बात बताऊं कि पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पर जब भी हम बुलाते हैं किसी भी प्रोग्राम में JNK का पार्टिसिपेशन जरूर होता है, ठीक है। मैम उत्तराखंड का एक और रिमार्केबल अचीवमेंट ये है, वहाँ पर एक ICT टूल्स पर एक कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स लगा टीचर्स के लिए, बदोनी नहीं चला 40,000 लोगों टीचर्स ने इसको। यस दैट इज हाँ यस। एक और आपके सामने आगे मैं बात करूंगी कि अब आप सोचो कि हमारे पास काम ही नहीं बचा, हम क्या करें, DLED तो चला गया। अब अभी देखिए इस कमरे में आके आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी, आपको ये चीज समझ में आएगी कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का मार्केट बहुत बड़ा है। लोकल भाषा में डिजिटल कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हिंदी और इंग्लिश में तो हम यहाँ बना देते हैं, लेकिन लोकल भाषाओं में नहीं है। और लोकल भाषाओं के एक्सपर्ट कौन हो? आप लोग हो। आप लोग नहीं भी हो तो लोकल भाषाओं के एक्सपर्ट आपके आसपास हैं, आप उनको। हमारे स्टेट में जैसे बिहार में बक्सर, गया और सीतामढ़ी में क्या है, लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी आम बोले जाने वाली कहानियाँ किस्से हैं उनको रिक्रिएट भी किया गया है। कुछ उसमें उनके पास साहित्य पुस्तकें भी बन रही हैं, जिसको कैसे जो हम लोग के जो रीडिंग कॉर्नर की उसके लिए जो लोकल कॉन्टेक्स्ट की ये चीजें भी हमारे स्टेट में चल रही हैं। ये जिलों के नाम मुझे लिख के लेना, हम अपने कंपेंडियम में रखेंगे। एक और चीज याद आई मुझे, और वही संदीप जोशी ने मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने ये शेयर किया कि वो बूढ़े लोग होते हैं ना जो गांव के बड़े बूढ़े, उनके पास बच्चे हम जाते हैं और बैठते हैं
और बैठ के पता है क्या करते हैं, उनसे उनकी कहानियां सुनते हैं और उनको हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट करते हैं। तो दे आर डेवलपिंग बुक्स बेस्ड ऑन रीजनल हिस्ट्री। और बहुत सारी रीजनल हिस्ट्री क्या होती है, खत्म होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है लोकल लोगों के साथ। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ कि आई एम अ हिंदू and I do a lot of puja पाठ। So whenever I used to do पूजा पाठ, मम्मी इसमें क्या करना है, मम्मी इसमें क्या लगता है, अपनी माँ को फोन करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई मदर एंड एवरी टाइम मैंने कभी उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। जैसे हमारी माँ तो इतनी पर्टिकुलर थी कि किस उंगली से तिलक लगता है, किस भगवान को हल्दी चढ़ती है, नहीं किसी को कुछ चढ़ता है, किसी को अक्षत चढ़ते हैं, किस किस भगवान को पीला फूल चढ़ता है, किसको लाल फूल चढ़ता है। शी वॉज एन एनसाइक्लोपीडिया। सुन सुन के याद आता है, और अब इतनी याद आती है कि कभी मैंने इसको लिखने की कोशिश नहीं करी, रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं करी। अभी किसी त्योहार में मैं व्रत में, मम्मी इसमें क्या करना होता है, फोन पे उंगली जाती है, मम्मी के नंबर पे उंगली जाती है, पर आज मेरी माँ नहीं है। तो इसी तरह इतनी सारी स्टोरीज खत्म हो जाती हैं। बड़े लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, हर चीज एनसीईआरटी की किताबों में नहीं होती है। तो लोकल फोकलोर, लोकल कल्चर की बातें वो सब खत्म होती चली जा रही हैं। तो ये आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की लोकल फोकलोर्स का एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कि हमारे लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं। अब जैसे कश्मीर में मैंने देखा, आई वेंट टू अ कश्मीरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि नडरू होते हैं ना आपके, कमल ककड़ी जिसको बोलते हैं, ढे बोलते हैं हरियाणा में, है ना, वो कमल की जो डंडी होती है। तो नडरू के उन्होंने इतने सारे मुझे डिशेस बताए, आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। ओके, देन दे टोल्ड कि कश्मीरी वाजवान ऐसा होता है, इतना फूड इतना रिच होता है कि सुबह से महिलाएं बनाना शुरू करती हैं शाम के लिए, ठीक है। सिमिलरली वेर एवर आई गो आई ट्राई टू एक्सप्लोर कि वहाँ का खाना क्या है। तो पता चलता इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसका कोई हिसाब नहीं। और बच्चों को वो नहीं पता, बच्चों को पूछो चार डिशेस के नाम, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन और ज्यादा बर्गर, मैगडी और ज्यादा हो गया तो काली दाल पीली दाल। और अच्छा एक मजे की बात सुनो, 5 तरह की दाल बना के दे दो वो नहीं बता पाएंगे कौन सी दाल है, ठीक है। मतलब सो कल्चरली डिप्राइव्ड वी आर। कोशिश करके देखना। हाँ, मेरा बेटा खुद कहता है मम्मी ये लाल दाल बनानी है, येलो दाल बनानी, मैंने 4 येलो दाल रखी है लाइन में, बताओ कौन सी खाएगा। तो चने की दाल और अरहर की दाल में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, दोनों येलो है, दोनों की साइज भी लगभग एक सी होती है, ठीक है। ये हमारे यहाँ कमांड बन जाती है, जो एजुकेशन की हुआ है, तो उसके लिए वेरी गुड, और छत्तीसगढ़ ये भी आप अब ये देखिए 6 मेजर पिलर्स हैं डाइट्स ऑफ एक्सेलेंस की जो स्कीम है। यहाँ बोलिए बोलिए। हिमाचल का ना ये चेंज हो गया, यूनिक आपने कुछ बताया ना कि द प्रिंसिपल और द कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोजेक्ट, नाउ वी हैव फुल फ्लेज्ड डिप्टी डायरेक्टर, ओके दे विल वर्क एज डीपीओ। ओके नाउ द डाइट प्रिंसिपल विल ओनली द, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, ये पिलर वो है, स्मार्ट क्लासरूम की बाध्यता है, सबको स्मार्ट क्लासरूम के लिए पैसा मिलेगा, ठीक है। और इक्विप्ड लैबोरेटरीज जरूरी है, उसके लिए भी डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस में प्रोविजन है। हाई स्पीड इंटरनेट, भाई डब्बा तो लगा लिया, ये इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे। सो दैट इज देयर। एम्पावरिंग टीचर्स, 50 आवर्स सीपीडी। अब ये 50 घंटे हर साल, हर टीचर, करोड़ों टीचर हैं, क्या पढ़ाओगे 50 घंटे हर साल। इस साल मैंने जो पढ़ लिया वो अगले साल में क्यों पढ़ूंगा, क्या पढ़ाओगे। मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, ओके। और फिर स्पेशलाइज वर्कशॉप, जैसे आप डिजिटल सीखना चाहते हो तो डिजिटल वाले टीचर छांटो, आप पेडागोजी से रिलेटेड चाहते हो, आप कंटेंट से रिलेटेड चाहते हो, स्पेशलिस्ट छांटो। अपने ही राज्य का नहीं, दूसरे राज्य वाले को बुला लो, इतने सारे दोस्त बने हो, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज बनाओ, बुला सकते हो, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बुला सकते हो, है ना।
तो और फिर ये टीचर्स, ये है स्पेशलाइज्ड लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज। अब एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, और ये मुझे दुख भी होता है और कई बार आश्चर्य भी होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला नाउ द टीचिंग एंड एवरी लर्निंग विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड? मतलब किताबें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई होगी? कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग कैसे होती है? कोई मुझे बताए कैसे होती है? कभी सोचा है? एक एग्जांपल देके बताओ तो जरा मुझे। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर हम क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, हाँ। अगर हमने स्टोमेटा को लेकर के पढ़ाया, स्टोमेटा जो होता है लेवल, तो उसी से रिलेटेड उनको कॉम्पिटेंसी डेवलप करके हम उनको अगर लीफ में से हम उसको फिर डाइसेक्ट करके कॉम्पिटेंसी क्या? कॉम्पिटेंसी नॉलेज स्किल प्लस एटीट्यूड तीनों चीज होना चाहिए बच्चे। स्किल क्या होती है? स्किल मतलब highest मतलब आप करने का तरीका, बेस्ट हाउ टू डू। एक एग्जांपल लेके बताओ मुझे, स्किल और कॉम्पिटेंसी के बीच में कोई अंतर है या नहीं है? तो क्या है? अंतर तो है, अंतर तो है, ये बात सही है। अंतर है। जैसे अभी मैं आपको एक बता रही थी, उदाहरण हुआ कि हम अगर मान लीजिए हम ओनियन पील स्टोमेटा बताया तो वो शो करके बताया, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज नॉट कॉम्पिटेंसी। वो बच्चा खुद करेगा ना। बच्चे को हमने लीव दिया, बच्चा उसको डाइसेक्ट करेगा, उसका एपिडेमिक्स, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, दैट इज स्किल भी तो आ रहा है ना मैम, उसके अंदर स्किल भी तो तो डेवलप हो रहा है। कॉम्पिटेंसी क्या है? तो दोनों चीजें हैं, उसको नॉलेज तो है, उसको प्रैक्टिकली करके भी देख रहा है वो। ऐसा नहीं, मेक इट मोर क्लियर, मुझे समझाओ, मुझे ऐसे नहीं समझ आ रहा। जैसे चाय बनाने का उदाहरण से बोल, हाँ बोलिए। जैसे चाय बनानी, जैसे सबको आता है चाय बनाने का स्किल मान लिया इनको, लेकिन बेहतर चाय बनाना वो उसका ए, सुनो, इसमें बेहतर में भी गलत है, किसी को कम दूध वाली अच्छी लगेगी वो नहीं, पर लेकिन अगर ये बेहतर रिलेटिव टर्म हो गया। फिर बेटर एग्जांपल बताओ, और बताओ, और समझाओ। यस जैसे मैम मुझे टेलरिंग में तुरपाई करनी आती है, हाँ, ये स्किल होगी। हाँ। अब उस तुरपाई से मैं कैसी ड्रेस बना सकती हूँ, उसको और क्या डिजाइन कर सकती हूँ, उसमें और क्या। तुरपाई से डिजाइन थोड़ी होती है यार, तुरपाई तो मैं किनारे पे ही डिजाइनिंग होती कर है। सकती हूँ, उसमें मैं कुछ और बना सकती हूँ, तो वो मेरी कॉम्पिटेंसी होगी कि मैं अपनी स्किल को कहाँ कहाँ यूज कर पाऊँ। उसका प्रैक्टिकल थोड़ा से आप किधर पहुंच रही हो पास में, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई कर पाऊँ कहीं कहीं और भी। और थोड़ा सा और आगे आओ। डेवलपमेंट है 6C डेवलपमेंट। अरे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड 6C और 4C और 4D मुझे मत बताओ, मुझे सिंपल उदाहरण से बताओ। मैम क्रिएटिविटी भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, ये बहुत ज्यादा हो गया। ये यहाँ से बाउंसर सिंपल बताओ। जो चीज मुझे आती मैं उसको दूसरे को भी बता पाऊँ, दूसरा उस चीज को कर पाए, वो और एक लाइक ट्रैफिक वाली कोई सिचुएशन है और वहाँ पर कोई ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है, तो अगर वो सही चला रहा है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। मतलब वो कॉम्पिटेंट इनफ है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस या डिफरेंट सिचुएशंस में भी उस स्किल को सस्टेन करेंगे। स्किल अटेनिंग इज द इजीएस्ट, मतलब आप किसी भी चीज पे स्किल गेन, मतलब इन माय पर्सपेक्टिव दैट आई डोंट नो, यू आर क्वाइट नियर टू इट, यू आर क्वाइट नियर टू। मैं अब दूसरा एग्जांपल सिंपल देती हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई में आने ना हम अपने सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, वो गड़बड़ है। जैसे मेरे पास एक रिवॉल्वर है, वैसे टीचर्स के पास नहीं होता, ठीक है? इसीलिए हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट बताया। तो ऐसा बड़ा धांसू एग्जाम्पल है। मेरे पास एक रिवॉल्वर है, मुझे पता है कि इसे लोड कैसे करना है, ठीक है? इसमें बुलेट कैसे डालना है, इस पे निशाना कैसे लगाना है, इसको चलाना कैसे, ठीक है? आई नो इट। कितनी दूरी पे चलाना है, कैसे चलाना है ताकि उस पर इफेक्ट मैक्सिमम हो, या जिस चीज़ पे मैं लगा रही हूँ उसको बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, आर पार हो जाए, ठीक है? वैसे तो मैं बोर्ड पे बनाऊंगी ना, ठीक है, उस पर मारूंगी निशान। पर ये क्या हुआ? स्किल। आई हैव द स्किल, एंड स्किल बहुत सारी स्किल्स, जैसे बुलेट भरना स्किल है, ट्रिगर दबाना स्किल है, ठीक है? कई बार लोग ट्रिगर दबता ही नहीं है क्योंकि ताकत लगती है, ठीक है? ताकत लगती है तो हाथ हिल जाता है, हाथ हिल जाता है तो निशाना चूक जाता है। ओके, then sometimes you have to oil, you have to clean everything, you know. So I know everything about my pistol, मुझे अपनी पिस्टल के बारे में सब।
लेकिन मेरे जेब में, मेरे पर्स में पिस्टल है और मुझे गुंडों ने घेर लिया और मैं उसे निकाल रही हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैं उसे चला ही नहीं पाई, चलाई तो कहीं और चल गया, ठीक है। दैट मीन्स आई ओनली हैव द स्किल, आई डू नॉट हैव द कॉम्पिटेंसी, बट इफ आई हिट at the target at the right time with maximum effect, that is my competence. Okay, now you get my point कि competency is a sum total of skills at their highest peak, और जब उनकी जरूरत पड़े उनका इस्तेमाल करने की क्षमता कहलाती है कॉम्पिटेंस। ओके, स्किल तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी स्किल बहुत सारे तरीके से, जैसे आपका ड्राइविंग वाला एग्जांपल बहुत, मतलब ड्राइविंग तो आती है, मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन सिक्किम में मैंने ड्राइवर्स को देखा, व्हाट प्रोफिशिएंसी, इतनी पतली पतली सड़कें हैं, कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई किसी को नहीं मारता। कल ही मेरे हस्बैंड की गाड़ी हाईवे पे ठुक गई, किसी ने, जीप वाले ने पीछे से ठोक दी, ठीक है, और जबकि इतनी चौड़ी सड़कें होती हैं और सिक्किम में इतनी पतली सड़कें होती हैं, लेकिन कोई किसी की गाड़ी को ठोकता नहीं है, ड्राइवर इतने प्रोफिशिएंटली। लेकिन सिक्किम वाले ड्राइवर से बोलते, मैडम हम लोग प्लेन्स में नहीं चला पाते, ठीक है, हम लोग प्लेन्स में नहीं चला पाते, ओके, प्लेन्स में नहीं चला पाते और हम पहाड़ों पे नहीं चला सकते, चलाने से डरते हैं, सो आई डू नॉट हैव दैट कॉम्पिटेंसी। ओके, सो स्किल इज अ बेसिक थिंग, यानी आपको स्किल, अब समझ में आ गया ना, आप मुझे ज्यादा, आप सब एडल्ट लर्नर्स, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे प्रोविजंस हैं, डाइट्स के 6 मेजर पिलर्स है ना। तो इसमें एक चीज देखो, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप आप कहीं नहीं करते थे, रिसर्चर्स में अब आप यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप में फोर्ज इन कर सकते हो, उस रास्ते में जा सकते हो, उनके साथ एमओयू डेवलप कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन आपको देखिए सरकार तो देती ही है, पैसा देती है, समय पे देती नहीं देती वो बात अलग है, लेकिन आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कभी पिछले सेशन में बोल के आई, अब 4P पार्टनरशिप्स होने लगी। पब्लिक प्राइवेट तो होती है, पब्लिक प्राइवेट जो होती है उनमें थोड़ा सिम्बायोटिक, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, ठीक है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप आ जा रही है। देखिए सिसोदा में, राजस्थान में एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ 2 उद्योगपति अपने स्कूल को देखने आए, सिसोदा एक रिमोट जगह, आप जानते होंगे राजस्थान वाले, तो वो लोग गए तो उनके हेडमास्टर जिस स्कूल में वो पढ़े थे उनको देखे, तो उन्होंने देखा स्कूल की बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, सरकारी स्कूल था, वो बहुत ज्यादा द्रवित हो गए और उन्होंने क्या किया, उसी समय, दे आर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने पूरे स्कूल की काया पलट करने के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए दान दे दिए, इट केम इन द न्यूज। ओके, सो इट इज पब्लिक प्राइवेट भी है, फिलैंथ्रोपिक भी है, वो बदले में कुछ नहीं चाहते, वो तो ऐसे सोर्सेज भी ढूंढिए भारत में। अब आज मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक दंपति से, मेरा मोबाइल देना, एक दंपति के खाते से साइबर फ्रॉड से 20 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और वो 70 साल के दंपति हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि भैया 20 करोड़ रुपए लिए तुम कर क्या रहे थे, ठीक है। नहीं नहीं, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये खबर आई है, देखिए 77 ओल्ड NRI वुमेन, husband duped of rupees 14.84 करोड़ in digital arrest cyber scam, ठीक है। तो मतलब आई वॉज एट लॉस ऑफ वर्ड्स कि भाई किसी गरीब को दान दे देते, किसी वृद्धाश्रम को दान देते, अपने लिए 1-2 करोड़ मेडिकल इमरजेंसी के लिए रख लेते, इतना पैसा रख के क्या किया। हाँ, the question comes to our mind, so there will be people who want to donate, they do not know whom to donate, approach them, उनको पता नहीं, और उनको ये भी नहीं पता कि हमारा पैसा सही हाथों में जाएगा कि नहीं, है ना। तो उनके साथ, उनके पास जाइए, उनसे कुछ भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, वो खुशी खुशी देंगे आप, ठीक है। अब ये डायरेक्शन के लिए ये NHA 2020 आपको ये सब मैंडेट दे रहा है, तो करना ही पड़ेगा, ये सब नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं, कैसे हंस के करो, रो के करो, मुस्कुरा के करो, एक दूसरे की मदद लेके करो, NCERT के साथ मिलके करो, दूसरी डाइट के साथ मिलके करो, करना तो होगा ही, ठीक है। तो ये एजुकेशनल स्कोप आपका बढ़ गया है, यहाँ पर आप सेकेंडरी स्कूल तक की किताबें तक भी बना सकते हो, लोकल कंटेक्चुअल मटेरियल,
टीचिंग, ये पूरे 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को आपको केटर करने वाला बनना पड़ेगा, यानी आपको अपनी कैपेबिलिटीज को उतना उन्नत बनाना पड़ेगा। डाइट जैसे उत्तराखंड में मैम, क्योंकि एनईपी 2020 तो आप बात कर रहा है कि डाइट एज ए एक्सीलेंस सेंटर, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले से ही प्रत्येक डाइट को एज ए सब्जेक्ट एक्सीलेंस सेंटर के तौर पे करीब 2017-18 के आसपास से तो प्रत्येक को एक सब्जेक्ट। आपका तो उत्तराखंड की एक रिसर्च को भी यूनिसेफ ने नाम दिया है ना, उसका भी काफी अखबारों में चर्चा आया था पिछले दिन। हाँ, तो एक्सीलेंस इनिशिएटिव, डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस वाला इनिशिएटिव है। इसके तहत ये सब 613 डाइट्स को समयबद्ध चरणों में 9 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। अभी पहले इंस्टॉलमेंट में 9 व्हेन दे यूटिलाइज। अब मैं जिस प्रोग्राम में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं हमारे पास आए नहीं, कुछ लोग कहते हैं क्या प्रॉब्लम मैडम, कहाँ यूज करें, पैसे खर्च करने की समस्या है। ठीक है, पहले रिसोर्स कंस्ट्रेंट कहते हैं, फिर कहते हैं हम कहाँ यूज करें। प्लान बना लो कि आएंगे तो कैसे खर्च करोगे पहले से। जैसे केबीसी में जाते हैं तो कहते हैं आपको यदि 7 करोड़ मिल गए तो आप क्या करोगे, तो सब एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ लेके जाते हैं। आप लोग को भी बनाना चाहिए, ठीक है। और फिर आप लोगों ने बताया था कि ये आईटेप और बीएड के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी भी करनी होगी, तो भाई कमर कस लो, बच नहीं सकते, करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड की बात तो कर ही नहीं जा रही। मान लो आ भी गया तो अब आपने आपको बड़े रोल में देखो ना, बड़े रोल में देख लो, किस बात में कम हो आप लोग। हमारे को रखेंगे नहीं वहाँ, तो क्यों नहीं रखेंगे, भगाएंगे कैसे, आई टैब में तो किसको लाएंगे, कॉलेज वाले आएंगे ना सारे। नहीं ऐसे नहीं आएंगे, आपको कौन हटाएगा भाई, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। आप ऐसी नेगेटिव सोच मत लो। और फिर आपका स्टेट लेवल प्लानिंग, ऐसा टैग वैग कुछ नहीं रहेगा। आप देखिए, नींव के पत्थर जो होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। नींव के पत्थर हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। और डाइट के लिए जितना आप लोग कर सकते हो, वो नया आने वाले को आपको 5 साल तो समझाने में लगेंगे डाइट कैसे काम कर रही थी, ठीक है। अभी मेरी नई फैकल्टी आ रही है, सारे 9 फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारे कॉलेजेस से आए हैं। उनको डाइट क्या करती है वो समझाने में, जब भी मैं किसी डाइट का लेक्चर होता है, आज भी मैं उन्हें बुलाना चाहती थी कि मतलब वो सारे लेक्चर्स में मैं उनको बिठाती हूँ कि सुनो, उनको नहीं पता कि डाइट का कितना ज्यादा विस्तृत रोल है, ठीक है। जब मैंने पूछा पहली बार, एक फैकल्टी से पूछा, तो मैंने पूछा डाइट क्या होती है, तो सोचने लगे। तो मैंने बोला मैडम डाइट के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो, मैंने बोला तुम बता रहे हो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन डाइट बताना चाहते हो। ही डिड नॉट नो अबाउट डाइट्स, ही डिड नॉट नो अबाउट डाइट्स, ठीक है। सच में आप चैट जीपीटी पे डाइट डालो, वो आपको डाइट चार्ट दे देगा, सच में राइट, ठीक है। तो डाइट मतलब अपने आप को है ना, 613 आपकी संख्या है, 613 डाइट्स, तो यू हैव टू बिकम अ फोर्स टू रेकन विद। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स बनना चाहिए, अपने आप को दीनहीन मत समझो, ओके। और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, सबका डाइट्स का इम्प्रूव हो भी रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो प्रोविजन है वो भी धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और अब एआई और टेक्नोलॉजी की मदद से ये बहुत आसान हो गया है कि JNK में कोई एक बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, जब हम हार्वर्ड के प्रोफेसर के लेक्चर यहाँ पे सुन लेते हैं, तो JNK के लेक्चर के उत्तराखंड में या उड़ीसा में क्यों नहीं सुने जा सकते। तो इसकी मदद से हम, और फिर यदि कोई हमें नहीं बुलाता है तो हम अपने वीडियो बना के यूट्यूब में डालने से हमें कौन रोकता है। हम अपनी कंटेंट बना के दें, हम अपनी लोकल कहानियां बनाएं, हम अपनी स्टोरीज बनाएं, हु स्टॉप्स यू, कोई भी नहीं रोकता आपको, ठीक है। तो अपना सिक्का जमाने के लिए आपको भी तो कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस और कोरियर की कहानी हो जाएगी, ठीक है। और आपके जो एक्सपेंडेड रोल्स है, याद रखना पोस्ट ऑफिस बनने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद पोस्ट ऑफिस हर राज्य में है, गली कूचे में, देश के कोने कोने में, लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के रियासी तक में पोस्ट ऑफिस है, सब जगह है, ठीक है। टाइम खत्म, 10 मिनट्स आर लेफ्ट, मैं उससे पहले खत्म कर दूं, ठीक है। फिर आपके रोज बहुत काम, आप ये कहोगे ये आई, ये तो बहुत सारा काम बता के चली गई। सच में आप अपना
काम, आप इंडिस्पेंसिबल बन जाओ एजुकेशन सिस्टम के लिए। आप देखिए खाने में नमक बहुत थोड़ी सी चीज होती है, लेकिन नमक नहीं होता तो खाना पूरा बेस्वाद हो जाता है। तो आप देश की एजुकेशनल ढांचे में, खाने में, देश की जो एजुकेशनल डिश है उस नमक के समान हो, जिसके बगैर देश का एजुकेशन सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो अपनी खारे भी मत बनो और कम भी मत रहो। मैम ताली भी नहीं बजाओ ताली अपने लिए। अपने आप को अप्रिशिएट भी करना आना चाहिए ना। अगेन आई गिव एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और आपको उसका इलाज काम नहीं कर रहा है, आप क्या करते हो? दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। अब दूसरा डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब इन डॉक्टर को दिखाया था, कोई आराम नहीं आया। वो डॉक्टर मर जाएगा, कभी नहीं बोलेगा डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया। वो डॉक्टर बोलेगा ठीक है इसको बदल के देखते हैं, आपको आराम आ जाएगा, ये बदल के देखते, कभी बुराई नहीं करेगा। और हम टीचर पीठ, अरे उसको कुछ नहीं आता, वो ऐसे ही। और जहाँ तारीफ करने की बात आई तो ताली बजाने में भी हाथ दुखते हैं। अब ठीक हो, अब थोड़ा सा अच्छा हुआ, जोश आया। एंजल इनको अच्छा खाना नहीं खिलाया तुमने लंच में, ठीक है? अच्छा, अब ये आपकी एक्सपेंडेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसोर्स पूल बनाए, जिसके पास जो अच्छा है उसे साझा करें। और करिकुलम और पेडागोजी में बहुत आपकी विस्तृत भूमिका होने वाली है, क्योंकि 2 करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं, उसके आधार पे किताबें बन रही हैं। किताबें बिल्कुल नए तरीके से बन रही हैं, कॉम्पिटेंसीज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो किताबों का ढांचा, रूपरेखा और जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी ट्रेनिंग करने के लिए आपकी एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग है उसमें आप शामिल करिए। जो एनुअल वर्क प्लान एंड बजट बनता है मंत्रालय का, तो उसमें कुछ चुनिंदा अधिकारी जाते हैं, तो आपकी बात वहीं दब जाती है। कोशिश करिए कि आप एनुअल वर्क प्लानिंग बजट में भी आपकी सहभागिता हो। वहां पर भी यदि आपको बुलाया नहीं जाता तो लिख के दीजिए कि डाइट्स के लिए इन मसलों पर भी चर्चा की जाए, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, देखिए एआई को बहुत लोग विरोध करते हैं, है ना? अरे एआई क्या हो गया, टीचर्स की जगह ले लेगा। तो द जनरेशन, आप जितना अपने आप को एआई से अपडेट रखेंगे, ठीक है, उतना ही आप अपने स्टूडेंट से बेहतर, उतना ही आप अपने काम को समेट पाएंगे। बहुत सारी जो मैनुअल तरीके से आप एक्टिविटी करते हैं, एआई की मदद से टक 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 फटाफट हो जाती है, ठीक है? ये पीपीटी भी मैंने एआई की मदद से बनाया है। तो इस तरह के पिक्चर्स, वो पता लग रहा है ना कहाँ से बनाया है। तो इट्स वेरी सिंपल, ओके, बाय गेटिंग पिक्चर्स, मेकिंग दैट, और सिमिलर टाइप। अब अगली बार मैं दूसरा बनाऊंगी, दूसरे से बनाऊंगी, जेमिनाई से बनाऊंगी अगली बार जब आपसे मिलूंगी तो। बिकॉज एवरी डे आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई जेपीएफ्स, उनसे सीखती हूँ। मुझे नहीं आता था, मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट की हूँ, जब एमएससी में थी तब तक मैंने कंप्यूटर छुआ ही नहीं था, देखा ही नहीं था, ठीक है? अब यहाँ एंजल जैसे विशेषज्ञ हैं जो सारे देश को एकदम डिजिटल बना रहे हैं। आई एम ए टेक्नोफोबिक पर्सन, बहुत डर जाती हूँ। लेकिन इन लोगों ने, मतलब इन लोगों को देख देख के मुझे, अरे ये कर सकती है, मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं भी सीखूंगी। और मैं तो बताओ, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, बट स्टिल आई एम लर्निंग। तो यू हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड, ओके, यू आर द लीडर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जब स्मार्ट क्लासरूम है तो वो तो बक्सा ही हो जाएगा ना, यूज नहीं करोगे तो, है ना? वो बक्सा बन जाएगा। तो उस बक्से, तो ये स्ट्रेंथनिंग बीआरसी सीआरसी लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बताया डाइट का ये फंक्शन है। निष्ठा ट्रेनर्स की लिस्ट बनाओ, जहां जरूरत है उपयोग करो। स्कूलों में जाने के लिए देखिए कि जो नवाचार हमने टीचर्स को सिखाए उनका असर हो रहा है कि नहीं, और ऑन साइट सपोर्ट देने के लिए भी तैयार रहो, ठीक है? और जॉइंट प्रोग्राम्स भी बनाए। अब ये 100 पॉइंट असेसमेंट मैंने जो बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे 60% पैसा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स पे 25%, और रिकॉग्निशन एंड प्रोग्राम्स जो आप करते हो, प्री सर्विस प्रोग्राम का कंडक्शन, बाकी सारे में, तो ये 60 पॉइंट्स चाहिए डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस के रिकॉग्निशन के लिए आपको। यानी पूरे ओवरऑल में आपको 60% चाहिए। तो आपको अपनी डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना है तो ऐसे करें, ठीक है? इन सब चीजों में आपके सोच होनी चाहिए। फंड शेयरिंग पैटर्न जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की होती है वो यही है, ठीक है? यूटीज जो है, यूनियन टेरिटरीज को 100% देते हैं, तो यूटीज में आप, और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
ये नॉन नेगोशिएबल है, इतना होना ही चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ये होना चाहिए, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए ये चीजें होना चाहिए, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के लिए ये उसके पैरामीटर्स में लिखा हुआ है, तो इसको मुझे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। 25 स्टाफ स्ट्रेंथ, 4 पैरा एकेडमिक, ठीक है, जो वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेरियन, आर्ट टीचर उस टाइप के सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, और 20 नॉन एकेडमिक जैसे क्लर्क्स वगैरह, हॉस्टल वार्डन, पीएन, पीए, स्टेनो, ये सारे कुछ, ठीक है। इसमें एकेडमिक वैकेंसी जो है 52%, आप में से किसी ने बताया कि मोर देन 50% ऑफ द प्लेसेस आर वेकेंट, तो पूरा नेशनल एवरेज यही है कि 52% वैकेंसीज हैं। और ये इमीडिएट एक्शन पॉइंट्स हैं जो आपको कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप असेसमेंट करें, कहाँ कमी है, ये नहीं कि कमरे के ऊपर कमरा बताते चले जाएं, ठीक है। कई बार तो मैं देखती हूँ कि हम लोग है ना मेंटली इतने बैंकरप्ट हो गए कि हम पीएमसी का एक परफॉर्मा भर रहे थे, तो हमने बोला कि CWSN टॉयलेट्स के लिए उसमें प्रावधान था, तो 2 हेडमास्टर बोलने लगे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो CWSN टॉयलेट है। तो फिर मैंने उनको बोला यदि आपके यहाँ CWSN टॉयलेट 1 है, यदि 2 हो जाएंगे तो किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। भाई रैंप बनती है तो उसको डिसेबल्ड बच्चा भी यूज करता है, व्हील चेयर वाला भी यूज करता है, नॉर्मल वाला भी यूज करता है, सामान के लिए भी यूज होता है। सो उन फैसिलिटीज का और लोग उपयोग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा क्या? देन दे प्रपोज, क्योंकि उसके लिए 1 लाख रुपया था, कुछ रुपए थे, बोले है हमको नहीं चाहिए, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, डिसेबल फ्रेंडली बना रहे, एक रैंप बना ली, क्या बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं जाएगा? दूसरे क्लास में जाएगा तो उसको भी तो आपको फंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना। तो इस तरह की प्लानिंग बनाइए। आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि एक कमरा और ठोक के खड़ा कर देना, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बैरियर फ्री बनाना, और साथ में क्रिटिकल गैप्स कहाँ है, कहाँ कमी है, ठीक है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल CCTV ठोक दो, अरे भाई CCTV में देखने को किसको टाइम है, कौन आया, जब चोरी चकाटी हो जाती है तो पता चलता है CCTV वो वाला खराब था, ठीक है। मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं है, तो उस तरीके से सोचिए, प्लान बनाइए। चीजें लाके खड़ी करना बहुत आसान है, उनका मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे हस्बैंड हरियाणा में पढ़ाते थे, अब तो वो रिटायर हो गए, तो मेरे हस्बैंड की कॉलेज में बायोमेट्रिक लगा, ठीक है, तो बायोमेट्रिक लगा, नहीं हस्बैंड के कॉलेज में नहीं, कॉलेजेस में तो वहाँ बायोमेट्रिक नहीं लगा, एक स्कूल में लगा किसी के परिचित। तो उन लोगों ने कहा कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, टाइम से आना पड़ रहा है और स्कूल में हम रुक भी नहीं सकते, तो बायोमेट्रिक क्या किया, वो छत पे गए और वो उखाड़ दिया वहाँ जहाँ पे उसका वो लगा था। तो वो AMC के अंदर था, वो दोबारा आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर अंगूठे लगाने लग गया। तो उनमें से एक जो खुराफाती नितिन था ना, जो टीचर, वो जो लेट आता था और काम नहीं करता था, उसने क्या किया, वो चला गया AMC वाले से पूछा, बोले तू कितनी बार और आएगा? तो उसने बोला मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 4 बार मशीन ठीक करना उसने जैसे ठीक होती दूसरे दिन फिर उखाड़ दी 4 बार उखड़ गई, अब वो मशीन उखड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेंटेनेंस के लिए भी हमें प्रोविजन रखने होंगे, ये नहीं कि चीज खड़ी कर ली, चीज तो आगे, इट इज नॉट फंक्शनल। आई रिमेम्बर I went in 2006 to Kashmir. They took me to SI Srinagar and it was on heights of militancy. I remember the date also, it was 26 December 2006. And they took me to their ISRO से जो सैटेलाइट वाला सेंटर होता था ना, they took me to a room, they said ये सैटेलाइट का यहाँ से वो होता है, ये पूरा वो apparatus है, beautifully Kashmiri carpet, it was covered by beautiful Kashmiri कपड़ा। I said इतना सजा के रखा है, ड्रिल क्यों नहीं करते? बोले मैडम देयर इज नो कनेक्टिविटी, वी हैव गॉट इट। ओके, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नो ऑफेंस टू कश्मीर, क्योंकि उस समय बहुत मिलिटेंसी भी थी, बट इट इज हैपनिंग, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस के उधर का एग्जांपल दिया आपको। और ये आपके इमीडिएट एक्शन पॉइंट है, ढूंढिए किसके साथ में करेंगे। 1 साल के लिए पॉइंटर्स बनाइए, 2 साल के लिए बनाइए, और ये मिड टर्म गोल्स हो गए आपके। लाइब्रेरीज को अपग्रेड करिए, रीडिंग की हैबिट्स डेवलप कराइए, खुद पढ़िए। व्हेन वाज द लास्ट बुक यू रेड अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स का किताब? कल ही पढ़ रही
जो आपके सब्जेक्ट की किताब नहीं वो आपने कब पढ़ी। अब ये देखिए कि पढ़ना है, और जो भी है ना, आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टॉप लीडर्स के बारे में पढ़िए। दे रीड अबाउट 1 बुक अ वीक। व्हेन यू रीड यू ओपन योरसेल्फ टू योर ब्रेन टू अ न्यू वर्ल्ड। हम क्या होते हैं, हम अपने ही सब्जेक्ट का पढ़ते हैं। शादी की घोड़ी देखिए, ऐसे लगे रहते हैं दोनों तरफ, वो चलती है इधर ना इधर देखती ना उधर देखती। जब सामने से भीड़ हट जाती है वो रुक जाती है। कब चलती है, जब लोग एकदम बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं ना उसके सामने, वो फिर खिसकने लग जाती है। हम ऐसे ही, लेट अस ओपन आवर विजन टू द वर्ल्ड। ओके, अब डाइट दूसरी दुनिया में कहीं पे डाइट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पूरे पूरे विश्व में नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ। तो भाई समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, और ये मुझे भगा रहे हैं। तो ये सब आपके साथ है। कल्चर सेंसिटिविटी, लैंग्वेज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आप बना सकते हो, कम्युनिटी का सपोर्ट ले सकते हो, अलग अलग तरह के जोग्राफिकल चैलेंजेस को टेक्नोलॉजी की मदद से ये कर सकते हो। अब ये स्लाइड थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे लो PMFS रजिस्ट्रेशन है तो डेडिकेटेड सपोर्ट सेल यहाँ जरूरत है। वेबसाइट जो फंक्शन नहीं कर रही है, इसके लिए आप जो एडटेक कंपनी से पार्टनरशिप करिए, आपकी वेबसाइट अपडेट हो, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मेंटेनेंस गैप जो मैंने बताया उखाड़ दिया हो सिस्टम, तो इसके लिए आप मेंटेनेंस गैप के लिए डेडिकेटेड बजट्स रखिए। स्टाफ वैकेंसी के लिए देखिए, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट करने का, लेकिन प्रोविजनल रिक्रूटमेंट का भी लेटरल एंट्री ऑप्शंस भी रखिए। और लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज है तो एकदम ही सारा हॉस्टल मत खड़ा करिए, फेज्ड कंस्ट्रक्शन, ये प्लानिंग से हो सकता है। ये 27-28 के मैंने गोल्स बताए हैं। ये गोल आप इसको, ये नंबर को 200 प्लस डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस से आप और बढ़ा सकते हो, और ये सारी चीजें आप करने की दिशा में अग्रसर हो और अच्छा कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ बिल, राइट। और हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन माइंडसेट, कि हम बदलाव लाने वाले चेंज एजेंट हैं। एक्सेलेंस की बात करिए, सेकंड ग्रेड चीजों पे कभी भी सेटल मत होइए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए लड़िए, अपने साथियों को सपोर्ट कीजिए, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए और डॉक्यूमेंट करके शेयर करिए ताकि लोग सीख सकें। और कमिटमेंट टाइमली, जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। कौन है? कोई राठौर बोल रहा है, कोई सलमान बोल रहा है। अरे डाइट वाले। दूसरे व्यक्ति को क्यों देखते हो, अपने आप को देखो ना, तुम्हें जोश भर रही हो। तो ये न्यू एरा ऑफ एजुकेशन, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 साल में प्लान है। इतने सारे टीचर्स एम्पावर होंगे, लैक्स ऑफ टीचर्स बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन तो कई सवालों के जवाब ऐसे होते हैं जो समय ही देता है और आप ही लोग देंगे, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हम चलते हैं। I'm going to put this question for discussion in the discussion forum. I will take it from the presentation because we want important questions which Madam has prepared for you to reflect, because ultimately this is the base for the whole program. So हम ये questions Madam क्या क्या दिया था, हम presentation डालने के टाइम उधर से discussion forum में डाल देंगे, so that आप कब time मिल रहा है आपका discussion में शुरू कर, because we are keeping next week also open. So वो डिस्कशन मेरे डिस्कशन फोरम में आपका व्यूज है क्वेश्चन का ऊपर डाल दीजिए. ओके, सो आई टेक दिस टाइम टू थैंक प्रोफेसर शरद जी for taking time to come here and spend time with us. I think you must have got a glimpse of what all has to be done by us, what is expected from us. At least it's a good start for us for the over 5 years, 5 days, what we are going to learn. Thank you so much, ma'am. Ma'am was telling she's not techno savvy. But actually, whenever we see, we work because we are in technology department. But ma'am is more updated, like she keeps on updating herself. And this is the inspiration youngsters like us get from them. Right? The very first online course
the very first course which I developed for Nishta was with 2 senior people of NCERT, and I thought, like all senior people, what will they do in online course development? So first was with Ranjana madam. So we started our course development at night 8 o'clock, and it's a pandemic. They have their own difficulties of health, but 8 o'clock we started, and morning 4 o'clock we finished development of one module. And when we developed the module with madam, they are all very seniors in NCERT. So when we developed the module with madam, we were thinking, oh, madam will come now, develop, right? But we used to see the kind of, even I used to go recording, you can see my video, I used to see very dull. I don't put makeup or need, but I saw ma'am like no fully Josh. And because it's not just I'm going to talk, the whole teachers are going to listen to me. That's a kind of motivation we need to take. We are inspired because of such senior people. You are senior people in your places. There are youngsters joining now. We request you to inspire them with your things like this. So surely people will talk about you. They have to follow your legacy in their diets. Like abhi naya people cannot think that na wo purane hai, kuch pata nahi. We cannot tell anymore. There is no age bar. But there are people who are, all this happens only because of their passion for addressing people. So we take a lot of inspiration from them. So that's why we stand here. So we are happy that you have them here. Thank you, Angel. Thank you so much, ma'am. Thank you, Angel, for all this appreciation, which I don't think so I deserve, but I thank all of you for being such a good audience, for being attentive throughout. I did not see anybody yawning or sleeping, so that is my reward. Thank you so much. आप लोग हंसे भी, मुस्कुराए भी, अपने दुखड़े भी बताए और अपने एक्सपीरियंस मैं अभी भेज Thank you so much, ma'am, once again. So we are just winding up. Who is the one who has to give tomorrow's newsletter? आज morning session is from Jharkhand. Afternoon session is from Uttarakhand. Okay, it's like you can use any tool and create. It should be 2 pages for each one of you. So for a day, it's like front and back. It should be your content. If you are going more than that, you should make in odd numbers. Sorry, even numbers. If you are going beyond 2 pages, you should make it 4 pages. 3 pages is not allowed. Okay? You have to make 2, 4, 6 like that only. Is that clear? So today, both of the groups, you can use the lab till 5:30. You can collect photographs. Our team will just collect the photographs and share it so that you can make it. It's like you need to present innovatively the newsletter and share it before 9:30. Okay? So tomorrow group, you are already ready. Second day. Satish, sorry. Jammu and Kashmir for morning and Rajasthan for evening. So how will you sit tomorrow? This is not your place. Okay? When you come inside, there will be a name list there. You have to check the name list, take your seats. Okay? So you have to mix up tomorrow with like, if this row is there, surely one person from each state will be sitting from this side. So 10 people will sit together so that like at least one person will be in each group for further discussion. Okay? So thank you so much. Why not? No, we have to compile it, no? So we needed a kind of. So अभी DA का मैं instruction अभी नहीं दिया. So because some people have traveled overnight and today they must be tired. So अभी आज आप जानो. Yes, ma'am. Sir, there was a question regarding evening tea. Usually the evening tea is kept down in the canteen, guest house canteen. Most of you don't go. Sometime when you go, it will be cold. So your tea because USO house will not have, and they don't give you snacks if it is provided. So we have arranged your evening chai here. 5 o'clock when you go, you have your chai, snacks, and then go. Okay?